Hello everyone, this is Anshalika. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about a decision that was given by Madras High Court. A plea was filed in the Madras High Court related to the reservation and based on caste after conversion to another religion. तो एक प्ली फाइल की गई थी मद्रास हाई कोर्ट में एंड जिसे रिजेक्ट किया गया है बाय द जस्टिस मिस ऑनरेबल जस्टिस जी आर स्वामीनाथन जी के द्वारा. So this whole topic is based on that particular concern. So एक पर्सन ने ये क्लेम किया था एंड रिजर्वेशन के लिए डिमांड करी थी एज ही हैज़ कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू टू मुस्लिम और ये प्ली फाइल की गई थी मद्रास हाई कोर्ट में. So Justice G.R. Swaminathan dismissed the plea filed by a Hindu man belonging to a community identified as in most backward classes who had converted to Islam seeking caste-based quota in state jobs. बेसिकली हमारा डिस्कशन इसी पे बेस्ड है. मल्टीपल टाइम्स पीपल हैव आल्सो आस्क्ड मी अबाउट अगर हम कन्वर्ट हो गए हैं सो कैन वी क्लेम रिजर्वेशन बेस्ड ऑन अ प्रीवियस कास्ट. So the Madras High Court has held that a person cannot carry the caste or community he was born into even after converting to another religion and cannot claim reservation based on the caste after he has converted. So ये केस है युवा अकबर अली वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो कि रिसेंटली ही टेक प्लेस किया है इन मद्रास हाई कोर्ट. तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रीवियस रिलीजन था उसके बेसिस पे आप रिजर्वेशन नहीं क्लेम कर सकते बिकॉज यू हैव कन्वर्टेड टू अ डिफरेंट रिलीजन एंड उसका कोई रीज़न है तभी आप कन्वर्ट हुए हो. इन अ जजमेंट पास ऑन December 1, Justice G.R. Swaminathan of the Madras High Court dismissed the plea filed by a man who, after converting from Hinduism to Islam, has sought benefit of reservation on the basis of the community that he was born into. Now, in our constitution, there is a fundamental right that we can practice any religion according to our will. So, उन्होंने अपने आप को convert किया from Hinduism to Islam as he belongs from a MBC when he was a Hindu. So MBC means backward class से वो belong करते थे और उसके basis पे उनको reservation मिल रहा था when he was a Hindu. But in Islam, it is not based on caste system. So he was trying to claim reservation on the basis of his previous religion. So Justice Swaminathan cited a host of the Supreme Court judgment. उन्होंने cite किया जो कि Supreme Court ने judgment pass किया था that held once born a Hindu converts to another religion which does not recognize the caste system, the person would cease to belong to the caste into which he was born. नाउ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पास किया अनसाइड किया कि अगर आप वंस पहले हिंदू रिलीजन में बॉर्न हुए थे देन यू हैव कन्वर्टेड योर सेल्फ इनटू इस्लाम एक अनदर रिलीजन को आपने अडॉप्ट किया है देन आपके जो बेनिफिट्स है रिजर्वेशन के वो सीज हो जाते हैं. The court also placed reliance on the apex court's judgment in Kailash Sonkar versus Maya Devi, which said that the caste that a Hindu belongs to is determined by his or her birth. Therefore, if a Hindu converts to Islam or Christianity or any other religion that does not recognize caste, the conversion amount to the loss of the said caste and that the original caste remains under the eclipse. तो ग्रहण लग जाता है उसके ऊपर. मीन्स अगर आप पहले हिंदू थे उन्होंने एक जजमेंट के ऊपर उन्होंने ये अपना जो प्ली फाइल की गई थी उसे डिसमिस किया एंड वो जजमेंट था एपिक्स कोर्ट का जजमेंट था मीन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कैलाश सोनकर वर्सेस माया देवी. तो उसमें ये कहा गया है कि अगर आप हिंदू बॉर्न हुए थे और आपने अपने आप को कन्वर्ट किया है इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में जहाँ पे रिलीजन डज नॉट रिकग्नाइज इज कास्ट देन कन्वर्शन अमाउंट टू द लॉस ऑफ द सेट कास्ट. मतलब आपका जो कास्ट सिस्टम था वो तो वहाँ से बैरियर हट ही जाता है एंड देन दैट द ओरिजिनल कांट रिमेन अंडर एक्लिप्स. तो उनके ऊपर ग्रहण लग जाता है एंड सून एज द पर्सन is reconverted to the original religion, the eclipse disappears. Means अगर फिर से वो रिकन्वर्ट कर लेता है मतलब फिर से मुस्लिम से हिंदू बन जाता है देन वो चीज़ हट जाती है एंड ऑटोमेटिकली आप प्रिजर्वेशन के लिए क्रेडिबल हो. द पिटिशनर हैड टोल्ड द हाई कोर्ट दैट ही एंड हिज फैमिली मेंबर्स वर हिंदू बिलोंगिंग टू द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया था इन मई 2008. इन 2018 द पिटिशनर सैट फॉर तमिलनाडु Public Service Commission examination. 2008 में he was Hindu but in 2018 means 2008 से पहले वो हिंदू थे and then in 2008 he converted himself into Islam religion. He adopted Islam religion.
एंड 2018 में जाके वो बैठे हैं तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, एंड उसके बेसिस पे ही वॉज क्लेमिंग रिजर्वेशन. नाउ इफ़ यू हैव कन्वर्टेड योर सेल्फ, अगर आपने एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लिया है अपने आप को, देन हाउ यू कैन क्लेम रिजर्वेशन. बेसिक आइडिया. उसके बेसिस पे आप प्ली फाइल कर रहे हैं, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़, आई डोंट वांट टू से समथिंग बट स्टिल दैट इज़ वेरी स्टूपिड कि आप हिंदू रिलीजन के बेस पे रिजर्वेशन फाइल कर रहे हैं एज यू हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड टू इस्लाम वेयर कास्ट सिस्टम वर्क ही नहीं करता है. बट देयर वर सर्टेन आर्ग्यूमेंट दैट हैज़ बीन गिवन बाय हिम एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट. एंड वो आर्ग्यूमेंट्स क्या थी, उन्होंने कहा ही फेल टू मेक इट टू द मेरिट लिस्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ हिज RTI query revealed that the TN Public Service Commission had treated him as a general category. ना वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए थे, सो देयर वाज समथिंग दैट ही वांटेड टू बी टू, जो कि एक रिजर्वेशन के थ्रू उनका नाम उस लिस्ट में आ जाए. राइट टू इन्फॉर्मेशन के क्वेरी ने रिवील किया कि उन्हें जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया गया है, उन्हें बैकवर्ड कैटेगरी में नहीं लिया गया है एज ही वॉज एन्जॉइंग द राइट इन व्हेन ही वॉज हिंदू. तो वो जो एक पर्टिकुलर आपको एक बेनिफिट मिल रहा था उस टाइम पे, रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिल रहा था, वो एज आपने रिलीजन कन्वर्ट किया है, आप कन्वर्ट हुए हो इस्लाम में जहाँ पे कास्ट सिस्टम को नहीं माना जाता है, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, उनको जनरल कैटेगरी की तरह कंसिडर किया गया. नाउ ही आर्ग्यूड दैट कुछ मुस्लिम्स में भी बैकवर्ड कैटेगरीज होती है, सो ही वॉज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट. बट अब जजमेंट क्या दिया गया है कोर्ट की तरह, उन्होंने ये कहा है कि एवरी ये आर्ग्यू किया गया कि आर्ग्यू दैट इज कन्वर्टिंग टू इस्लाम ही हैज़ एक्सरसाइज हिज फंडामेंटल राइट. ना वो फंडामेंटल राइट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी संविधान में ये लिखा है कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं अपनी चॉइस से, अपने विल से. बट बिफोर सच कन्वर्जन ही हैड द स्टेटस ऑफ एन MBC एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु रिकॉग्नाइज सम मुस्लिम कम्युनिटी एज बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लास. एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू कि कुछ मुस्लिम्स कम्युनिटी को स्टिल बैकवर्ड क्लास में कंसिडर किया जाता है. सो ही वॉज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट. बट जज ने क्या कहा कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लास में नहीं लिया जाता है. सो दैट वॉज द आर्ग्यूमेंट दैट वॉज गिवन or the judgment that was given by the Madras High Court. Therefore, the TNPSC, means Tamil Nadu Public Service Commission, should have considered his candidature in the backward class community, he argued. नाउ जब आप हिंदू थे तब उन्हें बैकवर्ड क्लास में लिया जाता था, एंड मुस्लिम्स में भी काफ़ी कम्युनिटीज़ को बैकवर्ड क्लास में लिया जाता है, तो उन्होंने इस बेसिस पे आर्ग्यू किया था. स्टेट गवर्नमेंट ने अपोज किया द पिटीशन आर्ग्यूइंग दैट द तमिलनाडु गवर्नमेंट डिड नॉट रिकॉग्नाइज ऑल मुस्लिम बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लास. तो सेम आर्ग्यूमेंट जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, वही चीज़ बोली गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कि हर मुस्लिम कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लास में नहीं लिया जाता है. देर आर सर्टेन सेक्शन जिन्हें कंसिडर किया जाता है, बट पूरी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं आती है. सो ये आर्ग्यूमेंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. सो आर्ग्यूमेंट्स जो वो कर रहे थे, जो पिटीशन थे जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, उनकी पिटीशन जो फाइल की गई थी उसको इनवैलिड शो करने के लिए देयर आर सर्टेन केसेस जो कि प्रीवियसली टेक प्लेस किए हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंसर्न ओनली, जहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट होकर स्टिल रिजर्वेशन की डिमांड कर रहा है. तो वहाँ पे जस्टिस स्वामीनाथन ने नोट किया द सबमिशन एंड साइटेड द 2013 जजमेंट. उन्होंने बताया ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट इन S. Zuhaiya Begum versus State of Tamil Nadu to say that the whole purpose of social justice is defeated if a person, even after converting, insists on claiming benefit of the community or caste that he previously belonged to. मतलब कन्वर्जन का फिर मतलब ही क्या रह जाता है. if you have converted yourself from Hindu to Islam and or from to Christianity, then what is the purpose of the conversion? अगर आप still वही पर्टिकुलर जो आपका प्रीवियस रिलीजन है उसके बेसिस पे जो बेनिफिट्स हैं वो अवेल करना चाहते हो या फिर उस चीज़ के फ़ायदे लेना चाहते हो, देन वाई यू हैव कन्वर्टेड योर सेल्फ. तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया इन 2013 के जो जजमेंट पास किया गया था. एज ऑब्जर्व्ड इन S. Yasmin केस, अ पर्सन कैन नॉट कैरी हिज कम्युनिटी ऑफ बर्थ इवन आफ्टर कन्वर्जन. और S. Yasmin के केस में भी यही ऑब्जर्व किया गया था कि आप वही कम्युनिटी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो कन्वर्जन के बाद भी. वेदर सच अ पर्सन शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इवन आफ्टर कन्वर्जन इज अ क्वेश्चन दैट इज पेंडिंग एडजुडिकेशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. और ये जो केस है स्टिल पेंडिंग है एपेक्स कोर्ट में, मीन सुप्रीम कोर्ट में.
When the Honorable Supreme Court is seized of the matter, it is not for this court to uphold the claim of the petitioner. Now, अगर आप इस तरीके की क्लेम्स करते हो कि आफ्टर कन्वर्जन स्टिल यू वांट अ रिजर्वेशन, जब एपिक्स कोर्ट का इस पर्टिकुलर मैटर पे एडजुडिकेट नहीं किया है, देन मद्रास हाई कोर्ट कैसे कर सकता है? आई एम नॉट परसुएटेड बाय द प्रीसीडेंट cited by the learned senior counsel appearing for the petitioner. The stand taken by the second respondent commission is correct. It does not warrant any interference, the high court said. ठीक है, तो देर आर सर्टन रूल्स. आपने अपने आप को कन्वर्ट किया है फ्रॉम वन रिलीजन टू डिफरेंट रिलीजन, सो देर इज़ अ रीज़न एंड स्टिल यू आर क्लेमिंग दैट यू वांट रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस रिलीजन. दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. एंड फिर कॉन्टेक्स्ट ही क्या निकलता है इफ़ अगर आप अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हो फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन, Now, who was from the petitioner side? So, senior counsel N. Azmal Khan and advocate C. Venkatesh Kumar appeared for the petitioner. अब government को represent as special government pleader A.K. Manikam and advocate V. Paneer Selvam appeared for Tamil Nadu government. So, these were the advocates who have been a part of this particular case in judgment. From the petitioner side, it was senior counsel M. Ajmal Khan and advocate C. Venkatesh Kumar. And from the state government side, it was Mr. A.K. Manikam and Advocate V. Paneer Selvam. So this was something very important and crucial when people do have a doubt about this, that after conversion from one religion to another religion, still we can claim the benefit of the previous religion. No, it's very clear that if you have converted from one religion to another religion, you cannot avail the benefit of your previous religion, as you have suffered something, that way you have converted yourself. So stay tuned with my channel, like, share and subscribe my channel. Click on the bell icon for future notifications and stay tuned with me guys, and bye everyone.